آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں موک ٹیسٹ 2 کے حوالے سے۔ یہ موک ٹیسٹ ہمارے لاگ ایڈ کی پریپریشن کے بیچ 2 کا دوسرا ٹیسٹ ہے۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 جو ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہے امام ابو حنیفہ بلانگز ٹو وچ اسکول آف تھاٹ۔ امام ابو حنیفہ بلانگ کرتے تھے حنفی اسکول آف تھاٹ سے، اور یہی امام ابو حنیفہ فاؤنڈر تھے حنفی اسکول آف تھاٹ کے۔ کوسچن نمبر 1 کا درست آپشن ہے آپشن سی۔ کوسچن نمبر 2، What was the original name of امام مالک؟ امام مالک کا جو اوریجنل نیم تھا وہ تھا مالک بن انس۔ کوسچن نمبر 2 کا درست آپشن ہے ہمارے پاس آپشن اے۔ کوسچن نمبر 3، امام حنبل was born in، امام حنبل پیدا ہوئے تھے بغداد کے اندر۔ کوسچن نمبر 3 کا درست آپشن ہے آپشن اے بغداد۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے کوسچن نمبر 4، امام شافعی was born in، امام شافعی پیدا ہوئے تھے 767 ہجری کو۔ کوسچن نمبر 4 کا درست آپشن ہے آپشن سی۔ کوسچن نمبر 5، the period of legal history is divided into، جو لیگل ہسٹری ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے 4 پیریڈز کے اندر۔ سو کوسچن نمبر 5 کا جو درست آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہے آپشن بی 4 پیریڈز۔ کوسچن نمبر 6 ہمارے پاس ہے the silent approval of the action by holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is called، جن اعمال کے حوالے سے یا جن ایکٹس کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائلنٹ اپروول دی ان کو ہم حدیث سکوتی کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 6 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس اویلیبل ہے کوسچن نمبر 7، what is the original name of امام حنبل؟ امام حنبل کا جو اوریجنل نیم ہے وہ ہے احمد ابن حنبل۔ کوسچن نمبر 7 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوسچن نمبر 8، امام شافعی واز ڈائیڈ ان، امام شافعی جو ہیں وہ ان کی وفات ہوئی 204 ہجری کو۔ کوسچن نمبر 8 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوسچن نمبر 9، ہو از دا فاؤنڈر آف مالک فقہ؟ جو مالک فقہ ہے اس کی جو بنیاد ڈالی یا جو فاؤنڈر تھے وہ تھے امام مالک ابن انس۔ کوسچن نمبر 9 کا درست آپشن ہے آپشن بی۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس اویلیبل ہے کوسچن نمبر 10، اجماع کے حوالے سے اجماع از تھرڈ سورس آف اسلامک لا، جو اجماع ہے یہ تھرڈ سورس ہے اسلامک لا کا۔ کوسچن نمبر 10 کا درست آپشن ہے آپشن سی۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس اویلیبل ہے کوسچن نمبر 11، سپریم کورٹ از آلسو کالڈ، سپریم کورٹ کو ہم ایپکس کورٹ بھی کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 11 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوسچن نمبر 12، the Supreme Court considered NAB Ordinance 1999 valid and with its effect retrospective۔ کوسچن نمبر 12 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس اویلیبل ہے کوسچن نمبر 13، the case of ظفر علی شاہ and others versus جنرل مشرف was reported in، یہ جو کیس تھا ظفر علی شاہ and others versus جنرل مشرف یہ رپورٹ ہوا PLD 2000 سپریم کورٹ پیج 869 کو۔ کوسچن نمبر 13 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوسچن نمبر 14، who was the chief justice at the time of ظفر علی شاہ کیس؟ جب ظفر علی شاہ کا کیس ہوا تب کون چیف جسٹس تھا؟ تب چیف جسٹس تھے ارشد حسن خان۔ کوسچن نمبر 14 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوسچن نمبر 15، the case of محمد نواز شریف president of Pakistan was reported on، یہ جو کیس تھا یہ رپورٹ ہوا PLD 1993 سپریم کورٹ پیج 473۔ کوسچن نمبر 15 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس اویلیبل ہے کوسچن نمبر 16، the main function of the legal profession is to promote the administration of justice۔ کوسچن نمبر 16 کا درست آپشن ہے آپشن سی۔ کوسچن نمبر 17، self advertisement by advocate is not permitted، جو سیلف ایڈورٹائزمنٹ ہے ایڈوکیٹ کی جانب سے اس کی اجازت نہیں ہے، ماں سوائے آپ اپنی نیم پلیٹ کے آپ اپنی جو سیلف ایڈورٹائزمنٹ ہے پبلک کے اندر وہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے آفس کے باہر ایک مخصوص سائز کی نیم پلیٹ جو 1.5x2 کی ہے اس کا ایک سائز ہے مینشن کیا گیا پاکستان بار کونسل کے رولز کے اندر، اس کے علاوہ آپ اپنی پبلسٹی کے علاوہ کام نہیں کر سکتے۔ جیسے آج کل ایڈورٹائزمنٹ کروا دی جاتی ہے، بڑے پینفلیکس یا ہورڈنگز جو ہیں چھپوا دیے جاتے ہیں، لیکن آپ کو لا جرنلز کے اوپر یا ڈائریز کے اوپر اپنی تصاویر لگانے کی اجازت ہے۔ سو کوسچن نمبر 17 کا درست آپشن ہے آپشن بی۔ کوسچن نمبر 18، ایڈوکیٹ از ڈیوٹی باؤنڈ
to maintain the respectful behavior towards the court. Yes. क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू विच रूल नो एडवोकेट विल यूज इट्स प्रीवियस डेजिग्नेशन. किस रूल के तहत एडवोकेट जो है वो अपने साबका ओहदे को अपने नाम के साथ मेंशन नहीं कर सकते, वो है रूल 174A. क्वेश्चन नंबर 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू विच रूल एडवोकेट्स शैल नॉट ज्वाइन एनी अदर प्रोफेशन, बिजनेस और सर्विस. किस रूल के तहत जो एडवोकेट्स हैं, बीइंग एन एडवोकेट, आप किसी और प्रोफेशन, बिजनेस या सर्विस को ज्वाइन नहीं कर सकते वकील होते हुए, वो है क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 175 सब रूल 1. क्वेश्चन नंबर 21, a decree is an operative part of a judgment. क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, a person in whose favor decree has been passed is called. ऐसा शख्स जिसके हक में डिग्री पास की जा रही हो या पास की गई हो उसको कहा जाता है डिग्री होल्डर. क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 23, सीपीसी कंसिस्ट्स हाउ मेनी ऑर्डर्स. सीपीसी जो है ये मुश्तमिल है 52 ऑर्डर्स के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 24, सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी डील्स विद. सेक्शन जो 10 है सीपीसी का ये डील करता है रेस्ट सब जुडाइस और स्टे ऑफ सूट से. तो क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 25, रेस्ट जुडिकाटा इज अ लैटिन टर्म. जो रेस जुडिकाटा है ये एक लैटिन टर्म है. क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ए. क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी, वैलिडिटी ऑफ कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड. किस किस चीज की हम वैलिडिटी को फ्रॉड के ग्राउंड के ऊपर चैलेंज कर सकते हैं, वो है जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री. इन तीनों की को हम चैलेंज कर सकते हैं, इनकी वैलिडिटी को ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड. सो क्वेश्चन नंबर 26 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट अपील अगेंस्ट द डिक्री पास्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन बी फाइल्ड इन. अगर डिक्री पास की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, उसके खिलाफ हमने फर्स्ट अपील में जाना है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाई कोर्ट. क्वेश्चन नंबर 28, देयर इज नो अपील इन कंसेंटिंग डिक्री. यस, कंसेंटिंग डिक्रीज के अंदर कोई भी अपील नहीं की जा सकती. क्वेश्चन नंबर 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 29, अंडर विच आर्टिकल ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश्ड. किस आर्टिकल के तहत यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत जो है आईसीजे का क़याम अमल में लाया जाता है, वो है आर्टिकल 1. क्वेश्चन नंबर 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 30, द टोटल जजेस ऑफ आईसीजे. जो टोटल जजेस हैं आईसीजे के उनकी तादाद है 15. क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, 15. क्वेश्चन नंबर 31, हु इलेक्ट द जजेस ऑफ आईसीजे. आईसीजे के जो जजेस हैं उनको इलेक्ट करते हैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ. तो क्वेश्चन नंबर 31 का दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए. Question number 32, under which article of ICJ statute judges may not exercise administrative functions, political functions and engage in any other occupation. ICJ का जो स्टैचूट है उसके कौन से आर्टिकल के तहत जजेस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, पॉलिटिकल फंक्शंस को सरंजाम नहीं दे सकते, तो वो है आर्टिकल 16. 32 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी. Question number 33, under which article of ICJ statute describes that member of ICJ may not act as counsel and agent or advocate. ICJ के स्टैचूट के कौन से आर्टिकल के तहत जो ICJ के मेंबर्स हैं वो एज अ काउंसिल या एजेंट या एडवोकेट अपनी सर्विसेज किसी प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट कंट्रीज को या किसी दूसरे कंट्री को प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वो है 33 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 17. क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ आईसीजे स्टैचूट मेंबर ऑफ आईसीजे शैल एंजॉय डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज. कौन से आर्टिकल
है आईसीजे स्टैट्यूट का, जिसके तहत जो आईसीजे के मेंबर्स हैं वो डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज को एंजॉय करते हैं, वो है ऑप्शन ए आर्टिकल 90। क्वेश्चन नंबर 34 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर आईसीजे शैल इलेक्ट फॉर 3 years अंडर कौन से आर्टिकल जो है आईसीजे स्टैट्यूट का, उसके तहत प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 3 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं, वो है आर्टिकल 21 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट। 35 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रिंसिपल सीट ऑफ आईसीजे इज इन, जो प्रिंसिपल सीट है आईसीजे की वो हैग के अंदर है। 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए हैग। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 37, वर्ड पर्सन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ पीपीसी। पीपीसी के किस सेक्शन के अंदर जो वर्ड पर्सन है ये डिस्क्राइब किया गया है, वो है सेक्शन 11। 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, एक्ट डन इन प्राइवेट डिफेंस इज, जो एक्ट डन किया जाता है प्राइवेट डिफेंस के तौर पे, इट इज नॉट एन ऑफेंस। जो भी आप एक्ट करेंगे प्राइवेट डिफेंस के अंदर वो एज एन ऑफेंस डील नहीं किया जाता, लेकिन इसको साबित करना भी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, द टर्म किसास मीन्स, जो टर्म किसास है उसका मतलब है सेम काइंड ऑफ हर्ट। क्वेश्चन नंबर 39 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, दमान मीन्स कंपनसेशन विच इज डिटरमाइंड बाय, जो दमान है ये कंपनसेशन है जो कि डिटरमाइन की जाती है कोर्ट की जानिब से। क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, दियत इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ पीपीसी, जो पाकिस्तान पीनल कोड का कौन सा सेक्शन है जो कि करता है दियत को डिफाइन, वो है क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन नंबर 323। क्वेश्चन नंबर 41 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, अडल्ट मीन्स द पर्सन हु अटेन्ड द एज ऑफ, अडल्ट से मुराद एक ऐसा शख्स है जो कि 18 साल की उम्र को पहुंच जाए। सो क्वेश्चन नंबर 42 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 18 years। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 43, इन केस ऑफ कत्ल वली शैल बी लीगल हेयर्स ऑफ विक्टिम, अगर एक बंदा कत्ल हो जाए तो ऐसी सूरत में उसका जो वली होगा वो विक्टिम के लीगल हेयर्स होंगे, उसके कानूनी वारिस हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, इंक्वायरी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, इंक्वायरी जो है ये सेक्शन सीआरपीसी के 4K के अंदर डिफाइंड, सेक्शन 4 सब सेक्शन K के अंदर डिफाइन की गई है। क्वेश्चन नंबर 44 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, इंक्वायरी कंडक्टेड बाय, इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है मैजिस्ट्रेट या कोर्ट की जानिब से। सो क्वेश्चन नंबर 45 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 46, सीआरपीसी इज प्रोसीजरल लॉ, सीआरपीसी जो है ये एक प्रोसीजरल लॉ है। 46 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं ये स्टेट के बिहाफ के ऊपर एक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, आर्टिकल्स डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं आईन पाकिस्तान 1973 के फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो है 8 to 28। क्वेश्चन नंबर 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन इज डिफाइंड इन, जो आर्टिकल है वो सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं आपको अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट, इलीगल अरेस्ट और इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट, तो वो है आर्टिकल 10। क्वेश्चन नंबर 49 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, आर्टिकल जो 13 है वो आपको प्रोटेक्ट करता है डबल पनिशमेंट के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 50 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी।